Hello and welcome you all. Dear students, this topic is Fourier transform. It is from the subject signals and systems and it is unit number 4. The notation for Fourier transform is x of t bidirectional arrow capital X of f. Do remember basic things. Whenever notation becomes capital, it indicates that domain has been changed. Domain is a reference. For example, when we draw any diagram with respect to time, it is called time domain. If that diagram is with respect to frequency, it is called frequency domain. So we are converting signal into frequency domain. So notation is capital X of f, function of f, that is function of frequency, because it is Fourier transform. This is the formula to calculate the Fourier transform: integration minus infinity to plus infinity x of t e raised to minus j 2 pi ft dt. We know that 2 pi f is omega, so we can well say that the formula is integration x of t e raised to minus j omega t dt. Now in this section we will obtain the Fourier transform of some standard signals. We know that there are different standard signals like unit step, unit impulse, then exponential signal, rectangular signal, and so on. So without wasting the time, let us start solving the numericals. First problem is obtain Fourier transform of unit step. That means x of t is equals to u of t. We know that u of t is a unit step. It is drawn like this. Its amplitude is 1 starting from t is equals to 0 till infinity. So the signal is like this. Its amplitude is 1. Now first we will write this formula. According to the formula, the limits are minus infinity to plus infinity, x of t e raised to minus j 2 pi ft dt. Now x of t represents amplitude of a signal. So amplitude of a signal is 1, and one very important part. The signal is from 0 to infinity. These are generalized limits, minus infinity to plus infinity. So since the signal is existing from 0 to infinity, I will write the limits 0 to infinity instead of minus infinity to plus infinity. Value of x of t, value means amplitude of this signal. It is 1 e raised to minus j 2 pi ft dt. Now we know how to solve this integration. Whenever you will come across e raised to j term, मतलब ये e raised to j term as it is लिखना है, e raised to j 2 pi ft, और पावर में जो t term है वो skip करके you will have to divide this by the remaining term, so it is minus j 2 pi f. Very simple trick. कोई भी e raised to j term है as it is लिखना है, पावर में वेरिएबल skip करना है t, क्योंकि इंटीग्रेशन dt के साथ ले रहे, रिमेनिंग टर्म्स क्या है माइनस जे 2 पाई एफ, उससे डिवाइड करना है. लिमिट्स आर 0 टू इंफिनिटी. सो in place of t we will have to put the limits. First let us put the upper limit. Upper limit is infinity, so I will write the new equation like this: x of f is equals to e raised to, देखो t के बदले में infinity पुट करेंगे तो infinity into this thing, infinity into anything is infinity, so I will get e raised to minus infinity. बहुत सिंपल लॉजिक है. infinity into anything is infinity, minus sign remains as it is, so e raised to minus infinity minus lower limit पुट करना है. t के बदले में 0 पुट करेंगे तो 0 into anything is 0, so you will get e raised to 0. Actually you will get e raised to minus 0, but it is 0, so plus minus will not make any difference. Divided by minus j 2 pi f. Now remember some basic identities which we already studied in earlier sessions. E raised to minus infinity is always 0, e raised to 0 is always 1. So put these values, you will get e raised to minus infinity at 0, e raised to 0 is 1, so 0 minus 1 upon minus j 2 pi f. So final answer is 1 upon j 2 pi f. Final answer is written like this: u of t, because we have calculated Fourier transform of u of t, make a bidirectional arrow. You may well write here ft, which represents Fourier transform, and its answer is 1 by j 2 pi f. This is the final answer of Fourier transform of unit step. Next problem, obtain Fourier transform of this signal x of t is e raised to minus at u of t. It is also called as one-sided exponential signal. अब देखो एक कंसेप्ट याद रखना है. कोई भी सिग्नल, एक्चुअली ये जो सिग्नल है इसका वैल्यू है e रेज टू माइनस एटी.
इनटू यू ऑफ टी लिखा है हमने, मतलब बेसिक सिग्नल इज e raised to minus at, इट इज मल्टीप्लाइड विथ यू ऑफ टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, इफ एनी सिग्नल इज मल्टीप्लाइड विथ यू ऑफ टी, वी नो दैट यू ऑफ टी इज फ्रॉम 0 to infinity, its amplitude is 1. Then if any signal is multiplied with u of t, amplitude of that signal is unchanged, will not change, but limits of integration will become 0 to infinity। तो ऐसे याद रखना है, u of t अगर किसी भी इक्वेशन में दिया है तो एम्पलीट्यूड एज इट इज रहेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ u of t यू नीड टू चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड राइट इट 0 to infinity, क्योंकि u of t होता है 0 to infinity और इसका एम्पलीट्यूड 1 है। उसके बाद मतलब ये सिर्फ u of t इसलिए यूज करना है टू जस्ट change the limits, उसके बाद u of t कहीं पे भी यूज नहीं करना है because its amplitude is 1. So I have written the formula. So next step is I will write the limit 0 to infinity, क्योंकि यहाँ पे u of t है इसलिए x of t का वैल्यू अब सिर्फ इतना ही पुट करना है, that is e raised to minus at. Now I am not writing u of t. Why? Because its value is 1. तो जैसे मैंने बताया u of t है इक्वेशन में, तो सिर्फ लिमिट चेंज करने के लिए यूज करना है, बाकी कहीं पे भी u of t लिखने की जरूरत नहीं है। into remaining term this term as it is e raised to minus j 2 pi ft dt। अब बहुत सिंपल है ये न्यूमेरिकल्स, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर। ये मैं माइनस टी कॉमन लेता हूँ, दो e raised to t के टर्म्स में, सो आई एम टेकिंग माइनस टी कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा a, माइनस n ऑलरेडी कॉमन लिया है तो a ब्रैकेट में आएगा प्लस j 2 pi f dt। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सो इट्स इंटीग्रेशन e रेज टू टर्म है तो पहले टर्म एज इट इज लिखेंगे a j 2 pi f डिवाइडेड बाय, वेरिएबल स्किप करना है लेकिन साइन के साथ डिवाइड करना है, मतलब वेरिएबल dt के साथ ले रहे हैं तो t स्किप करना है और साइन के साथ इसको डिवाइड करना है, सो a प्लस j 2 pi f लिमिट्स 0 to infinity। अब देखो t के बदले में लिमिट्स पुट करना है, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, वी नो द प्रोसीजर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो t के बदले में इंफिनिटी पहले पुट करेंगे तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इंफिनिटी इनटू दिस टर्म बिकम्स इंफिनिटी, माइनस साइन एज इट इज, e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस 0 पुट करेंगे t के बदले में तो 0 इंटू ये टर्म ब्रैकेट टर्म बिकम 0, सो e रेज टू 0 अपॉन माइनस a plus j 2 pi f। अब we know the identity, e raised to minus infinity 0, e raised to 0 is 1, so similar to the earlier numerical, it is 0 minus 1 upon minus a plus j 2 pi f। So final answer is this minus minus become plus 1 upon a plus j 2 pi f। अब जैसे देखो एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, ये इक्वेशन है, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर आया फोरियर का ये a अपॉन j 2 pi f। सपोज मुझे सिर्फ u ऑफ t का कैलकुलेट करना है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, जैसे पहला सम हमने u ऑफ t का किया, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है और u ऑफ t का चाहिए इससे, तो कैसे सोचना है, आई वांट u ऑफ t ओनली, दैट मींस दिस टर्म शुड बी मेड 1। ये कैसे 1 कर सकते हैं हम लोग, इफ आई विल पुट इन दिस इक्वेशन, इफ आई विल पुट a is equals to 0, तो I will get e raised to 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, e raised to 0 is 1 into u of t, तो सिर्फ u of t बच जाएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर में भी ये फाइनल आंसर अपने पास है, a का वैल्यू 0 पुट करना है तो u of t का आंसर आएगा 1 upon 0 plus j 2 pi f, मतलब j 2 pi f। So this is the way how you can correlate the things and you can obtain the Fourier transform of only u of t। Next numerical, obtain Fourier transform of x of t is a rect means rectangular signal t upon big T, capital T। अब देखो and sketch the magnitude spectrum, बेसिक कंसेप्ट्स रिकॉल कर लो। कोई भी रेक्टेंगुलर सिग्नल है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड में आधा पोर्शन नेगेटिव साइड में। इसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट ये होता है, रेक्ट ए मतलब एम्पलीट्यूड, रेक्ट ऑफ टी स्मॉल टी अपॉन विड्थ ऑफ सिग्नल। तो ये जो दिया है कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स विड्थ ऑफ सिग्नल, दैट मींस विड्थ मस्ट बी फ्रॉम माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2, क्योंकि टोटल विड्थ टी है, आधा पोर्शन नेगेटिव साइड में होगा आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड में होगा, सो विड्थ इज
minus t by 2 to plus t by 2. If you want to draw the diagram will be like this. यहाँ पे minus t by 2 लिखता हूँ, ये 0 है, this is plus t by 2, and it is a rectangular signal whose amplitude is 1. So signal is like this. Whose amplitude is a, not 1. So signal is like this. This is called rectangular signal. अगर suppose यहाँ पे ऐसा दिया है equation में t upon 2t, what you would have done? ये अगर 2t होता है तो आधा पोर्शन पॉजिटिव साइड में, आधा नेगेटिव साइड में, सो इट वुड हैव बीन माइनस टी टू प्लस टी, ऐसे. ओके, प्रेजेंटली इट इज ए रेक्ट ऑफ टी बाय कैपिटल टी. अब जैसे देखो ये डायग्राम क्यों बना है, आपको लिमिट्स इंटीग्रेशन के पता होने चाहिए. बहुत सिंपल ट्रिक है. ये जो लिमिट है, जो गिवन वैल्यू है, उसको 2 से डिवाइड करना है हमेशा हमेशा. सो इट विल बी टी बाई टू, निगेटिव टी बाई टू और पॉजिटिव टी बाई टू, ऐसे मार्क करना है. प्लस टी बाई टू एंड माइनस टी बाई टू. All right, so first we will write the formula to calculate Fourier transform. So it is x of f is integration minus infinity to plus infinity x of t e raised to minus j 2 pi f t dt. This is the formula. In this case, limits are minus t by 2 to plus t by 2. So I will write the limits minus t by 2 to plus t by 2. X of t, वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी इज ए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ ए रेक्ट भी लिखते हैं. रेक्ट इज अ नोटेशन, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एनीथिंग, तो साइन एक नोटेशन है. लाइकवाइज रेक्ट इज नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर सिग्नल, बट इट्स एम्पलीट्यूड इज ए. सपोज एम्पलीट्यूड नहीं दिया है तो एज इफ इट इज 1 इनटू रेक्ट, तो एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा ऐसे. सो आई एम राइटिंग ए ई रेज टू माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी. अब सिंपल है, a is constant can be taken outside the integration. e raised to minus j 2 pi ft का इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखते हैं पहले. e raised to minus j 2 pi ft upon minus j 2 pi f. Limits are minus t by 2 to plus t by 2. We know the usual procedure. t के बदले में अब मुझे एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है. So next equation can be written as it is a in the bracket e raised to minus j 2 pi f. upper limit है t by 2, so I will write t by 2. फिर दूसरा लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट माइनस e raised to minus j, ये माइनस j है, माइनस j 2 pi f. लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है. लोअर लिमिट इज माइनस t by 2 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है डिनोमिनेटर का माइनस j 2 पाई f. आई एम कीपिंग इट एज इट इज. ये लिमिट्स पुट किया मैंने, अपर लिमिट एक बार, फिर माइनस लोअर लिमिट. अब जैसे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहीं पे मैं चेंज कर लेता हूँ, माइनस माइनस बिकम प्लस. जब भी whenever you are getting answer in terms of e raised to something, you will have to convert in terms of sin theta. Basic formula of sin theta is e raised to j theta minus e raised to minus j theta upon 2j. तो टर्म्स रीअरेंज करते हैं पहले. लिसन केयरफुली, ये फॉर्मूला में पहला टर्म हमेशा e raised to j into प्लस थीटा है, माइनस e raised to माइनस j थीटा है, मतलब पहला e raised to प्लस j थीटा का टर्म अरेंज करना है. सो आई विल रीअरेंज द टर्म्स लाइक दिस. देखो ये मैंने प्लस बनाया, माइनस माइनस था तो प्लस किया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल राइट इट लाइक दिस. ये टर्म मैं पहले लिखता हूं. देखो और एक चेंज याद रख लो, ये प्लस किया, ये 2 सब कैंसिल किया, ये माइनस साइन है. अगर ये माइनस साइन मैं न्यूमरेटर में एब्सॉर्ब करूंगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा. देखो बहुत सिंपल है, ये माइनस साइन मैं एब्सॉर्ब करूंगा, ऊपर ट्रांसफर करूंगा, तो पहला टर्म माइनस होगा, दूसरा टर्म प्लस होगा, इसलिए ये माइनस साइन यहां से वैनिश हो जाएगा. अब प्लस टर्म है वो पहले लिखना है. सो इट इज e raised to j pi f t. 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस था, ये प्लस कर दिया है, ये नीचे का माइनस साइन ऊपर ट्रांसफर किया, तो ये टर्म माइनस होगा, ये टर्म प्लस हो गया. प्लस का टर्म मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला में e raised to प्लस j थीटा पहले चाहिए, तो ये टर्म आ गया. माइनस ये सेकंड टर्म लिखना है, e raised to माइनस j pi f t. ये एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय. अब देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2j चाहिए मुझे, तो ये सिर्फ 2j लिखता हूं, मतलब ये ऐसा लिखता हूं 2j. और ये जो टर्म है पाई f, दिस कैन बी टेकन आउटसाइड दिस ब्रैकेट.
तो ये टर्म आया e रेस टू जे 2 पाई एफ टी माइनस e रेस टू माइनस जे 2 पाई एफ टी अपॉन 2j। अब दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, मतलब ऐसे याद रखता है e रेस टू जे के साथ जो टर्म है, यहाँ पे e रेस टू जे के साथ थीटा है इसलिए साइन थीटा लिखा है। यहाँ देखो e रेस टू जे के साथ ये टर्म है पाई एफ टी, सो आई विल राइट दिस आंसर एज, this is answer of x of f. X of f is a by pi f in the bracket sine of pi f t, sine of pi f t। अब देखो कभी भी जब साइन के टर्म्स में आंसर आ रहा है साइन ऑफ पाई समथिंग, लाइक इन फोरियर सीरीज वी हैव लर्न कि इसको सिंक में कन्वर्ट करना है। दिस इज नॉट द सफिशिएंट, आई मीन इट इज नॉट द सफिशिएंट सॉल्यूशन, इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंक में कन्वर्ट करना है। वी ऑलरेडी लर्न, लेट मी ब्रश अप द थिंग्स वंस अगेन। सिंक ऑफ एक्स, ये SINC है, यहाँ पे C है, SINC, सिंक ऑफ एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग, वो ऐसा फॉर्मूला होता है साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, मेक द थिंग सिंपल, ऐसे याद रखना है। साइन के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी टर्म है पाई एफ टी है, वो उसी टर्म से डिवाइड कर लो पाई एफ टी, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, मैथमेटिकली इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, तो इनटू पाई एफ टी, मतलब मैथमेटिकली ये पाई एफ टी और ये पाई एफ टी कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट ओरिजिनल टर्म। अब ऐसे सोचना है, ये जो टर्म है दिस टर्म, फॉर दिस टर्म आई कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ सिंक फंक्शन। सिंक ऑफ फॉर्मूला क्या है, SINC, सिंक ऑफ एक्स इज साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई एक्स, मतलब ऐसे याद रख लो साइन पाई इंटू एनीथिंग डिवाइडेड बाय पाई इंटू द सेम थिंग, मतलब एक्स। तो यहाँ पे देखो साइन पाई एफ टी अपॉन पाई एफ टी, मतलब ऐसा सोच लो यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा एफ टी, तो साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स एफ टी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आ जाएगा सिंक ऑफ एक्स, मतलब एफ टी, सिंक ऑफ एफ टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सिर्फ ब्रैकेट टर्म का वैल्यू आ गया सिंक ऑफ एफ टी, लेकिन ब्रैकेट के पहले और बाहर ये टर्म है पाई एफ इंटू पाई एफ टी, तो इसमें से पाई एफ और पाई एफ कैंसिल हो गया। सो सिंपल आंसर आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स ऑफ एफ इज, देखो पाई एफ कैंसिल हो गया, ये टी मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ तो इट बिकम्स ए टी सिंक SINC, सिंक ऑफ एफ टी। This is the final answer, that is the Fourier transform of rectangular signal. अब in the question it is also mentioned sketch the magnitude spectrum। देखो सिंक में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम फिक्स है, मतलब कोई भी सिंक फंक्शन का डायग्राम ये फिक्स है। वी हैव लर्नड इट इन यूनिट नंबर 1। ये सिंक फंक्शन का ऐसा डायग्राम होता है, ये ऐसे दोनों साइड साइनोसॉइडल गोज ऑन रिड्यूसिंग एट जीरो, आइडियल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज 1। आइडियली सिंक का एम्पलीट्यूड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे a इंटू टी है, सिंक के पहले ये SINC है, साइन नहीं है, सिंक के पहले AT है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैं लिखता हूँ AT। अब बाकी रीडिंग्स कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट। मुझे बाकी रीडिंग्स मार्क करने हैं ग्राफ पेपर पे। देखो सिंक ऑफ एक्स इज जीरो, मतलब ये वैल्यू जीरो, मतलब दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, सिमिलरली दिस इज जीरो दिस इज जीरो दिस इज जीरो दिस इज जीरो एंड सो ऑन। Sync of x is 0 at x is equals to plus minus 1 plus minus 2 and so on. Just now we discussed, इस केस में x का वैल्यू है f of t, therefore ऐसे लिखता हूं मैं sync of f of t is equals to 0 at, देखो क्या लिखा है हमने, x is equals to, मतलब f of t is equals to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। अब देखो मुझे एक ग्राफ बनाना है x of f वर्सेस f, इस एक्सिस पे f चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये t यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल T, तो f का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई टी प्लस माइनस 2 बाई टी प्लस माइनस 3 बाई टी एंड सो ऑन। मतलब इस ग्राफ पे रीडिंग्स कैसे मार्क करने हैं, ये वैल्यू होगा माइनस 1 बाई टी, ये वैल्यू होगा प्लस 1 बाई टी, ये वैल्यू होगा 2 बाई टी माइनस 2 बाई टी, ये माइनस 3 बाई टी, ये होगा 2 बाई टी, ये होगा माइनस 3 बाई सॉरी प्लस 3 बाई टी, नेक्स्ट 4 बाई टी एंड सो ऑन। सो दिस इज द वे
how to solve this numerical. This is the important numerical. We have also plotted the magnitude spectrum of this numerical. Next numerical, obtain Fourier transform of x of t is equals to delta t. रेफरेंस के लिए मैंने डेल्टा टी का डायग्राम बनाया है. डेल्टा टी इज कॉल्ड यूनिट इम्पल्स. जीरो पे एक पल्स ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा टी. अब देखो, इसका फोरियर है, लाप्लास है, व्हाटएवर जो भी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, हमेशा एक प्रॉपर्टी यूज करना है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन केस ऑफ फोरियर सीरीज ऑल्सो. ये स्पेलिंग है SIFTING, इट इज नॉट SHIFTING. सो इट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन. ये प्रॉपर्टी ऐसा है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t डेल्टा t माइनस t0 dt. अगर ऐसा है तो दिस आंसर ऑफ इंटीग्रेशन इज x ऑफ t0. x of t0 is value of x of t at t is equals to t0. Let us learn how to make use of this property. देखो, ये जो sums हम लोग solve कर रहे हैं, these are the Fourier transform of standard signal. So all these numericals are most important. अब as usual, first I will write the formula of Fourier transform. So it is integration minus infinity to plus infinity x of t e raised to minus j 2 pi ft dt. अब इस केस में x ऑफ t मतलब गिवन सिग्नल डेल्टा t है, तो x ऑफ t का वैल्यू डेल्टा t पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल्टा t e रेज टू माइनस j 2 pi ft dt. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से सुन लो, ये इक्वेशन 2 है. RHS साइड ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, RHS ऑफ इक्वेशन 2 is to be compared with this integration. मतलब ये दो टर्म्स, ये इंटीग्रेशन का ये टर्म और ये टर्म कंपेयर करना है. कैसे कंपेयर करना है? देखो, यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा का कौन सा टर्म है? डेल्टा टी माइनस टी जीरो. सो आई विल राइट इट हियर. देयरफॉर डेल्टा टी माइनस टी जीरो इज सेम एज डेल्टा टी. ये दो इंटीग्रेशन के टर्म्स में इक्वेट कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं. यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में डेल्टा टी माइनस टी जीरो है. सो आई शुड गेट डेल्टा टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा टी. ये कब पॉसिबल है? इफ आई विल पुट टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, तभी ये पॉसिबल है. देन टी जीरो विल बी जीरो एंड डेल्टा टी इज सेम एज डेल्टा टी. तो कंडीशन आ गया, टी जीरो इज इक्वल टू जीरो. नाउ लिसन केयरफुली. ये इंटीग्रेशन मैन्युअली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल, मैन्युअली इन द सेंस नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेल्टा टी सिग्नल है इसका विड्थ नहीं है. अगर विड्थ होता है तभी हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज करना है. अब देखो आगे सॉल्व कैसे करना है. व्हाट आई हैव रिटन, ये अगर इंटीग्रेशन ऐसा है तो इसका आंसर होता है x ऑफ टी. इसका आंसर होता है x ऑफ टी जीरो. x ऑफ टी जीरो इज वैल्यू ऑफ x ऑफ टी एट t इज इक्वल टू टी जीरो. हमने सिर्फ डेल्टा टी के टर्म्स कंपेयर किए. एक्सेप्ट डेल्टा टी, व्हाट इज रिमेनिंग टर्म? दैट इज e रेज टू माइनस j 2 pi ft. यहाँ पे डेल्टा टर्म छोड़ के व्हाट इज रिमेनिंग टर्म? x ऑफ t. देयरफॉर आई विल राइट x ऑफ t इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस j 2 pi ft. अब देखो, डेल्टा के टर्म डेल्टा के साथ कंपेयर करना है. बाकी जो रिमेनिंग टर्म है इसमें नोटेशन है x ऑफ t. इसमें रिमेनिंग टर्म क्या है? e रेज टू माइनस j 2 pi ft. सो आई हैव रिटन x ऑफ t इज e रेज टू माइनस j 2 pi ft. अब इसका जो आंसर है ये आता है x ऑफ टी जीरो. टी जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो. इसका मतलब है इट इज द आंसर ऑफ x ऑफ टी एट जीरो. तो मेक इट मोर सिंपल. देखो, टी जीरो का वैल्यू जीरो है, मतलब इस इक्वेशन में जहां पे भी टी है एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए x ऑफ टी जीरो. x ऑफ टी जीरो मतलब वैल्यू ऑफ x ऑफ टी एट t इज इक्वल टू टी जीरो. टी जीरो का वैल्यू है जीरो, मतलब टेक्निकली इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, आंसर ऑफ दिस टर्म इज वैल्यू ऑफ x ऑफ टी एट जीरो. मतलब मेक इट मोर सिंपल. ऐसे याद रख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. x ऑफ टी का जो आंसर आ रहा है, टी जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो. वो वैल्यू t के बदले में पुट करना है. सो फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन आई विल राइट इट ओवर हियर. पूरा इसका आंसर ऐसे होगा, t के बदले में टी जीरो का वैल्यू पुट करना है. टी जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो. सो इट इज e रेज टू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू 1. Therefore, this transformation, rather Fourier transform of delta t can be written as 1. So this is the way how to calculate Fourier transform of delta function. Next problem, last standard signal, obtain Fourier transform of x of t is Asgian of t, that is signum function. Asgian of t is called signum function. We have learned all these standard signals in unit number 1. Anyways,
सिग्नम फंक्शन का डायग्राम ऐसे होता है, पॉजिटिव साइड में मतलब ये जीरो है, पॉजिटिव साइड में जीरो से इंफिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और माइनस इंफिनिटी तक मतलब निगेटिव साइड में इसका एम्पलीट्यूड माइनस इंफिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड है -1। ये थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है, मतलब वी हैव टू मेक यूज ऑफ सम डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व सच न्यूमेरिकल्स। अब देखो टेक्निक क्या है, इफ आई विल कंसिडर द सिग्नल 2u ऑफ टी, हमें पता है सिर्फ अगर मैं u ऑफ टी लिखता हूं तो उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। आई एम राइटिंग 2u ऑफ टी, मतलब इसका ये यूनिट स्टेप है इसका, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड 2u ऑफ टी है, मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड 2 है। सो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। सो इट इज अ स्टेप सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड इज 2। सिर्फ यूनिट स्टेप बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड 1 होता है, 2 इंटू यूनिट स्टेप मतलब 2 एम्पलीट्यूड माइनस एक कांस्टेंट सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। सो दिस इज कॉल्ड डीसी सिग्नल। ये 1 एम्पलीट्यूड है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब यहाँ पे जीरो है, ऐसा सोच लो ये जीरो से प्लस इंफिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। ये एम्पलीट्यूड 2 है, ये पॉजिटिव साइड में एम्पलीट्यूड 1 है, 2 माइनस 1 पॉजिटिव साइड में एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा। निगेटिव साइड में देखो ये टर्म 2u ऑफ टी निगेटिव साइड में 0 है, तो और ये टर्म निगेटिव साइड में 1 है, तो 0 माइनस 1, देखो ये निगेटिव साइड का एम्पलीट्यूड 1 है प्लस 1, तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, इसलिए निगेटिव साइड पे -1 आ गया। इसका क्या मतलब है, इफ आई विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन then I will get this type of signal which is naturally a signum signal, that is Hgn of t. So I can write the equation as x of t which is signum of t, Hgn of t which is same as 2u of t minus 1। ये मैंने कैसे लिखा, by I have written it by making use of the diagram। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया इसमें तो कुछ अलग ट्रिक्स यूज करने, सो आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो LHS में आएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, RHS में आएगा 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लेंगे, ऐसा लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ u ऑफ टी माइनस d बाई डी टी ऑफ 1। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप, ये फॉर्मूला याद रख लो आप, d by dt that is derivative of unit step is delta function, delta of t। This is important formula, derivative of unit step is delta function और integration of delta function is unit step। anyways यहाँ पे डेरिवेटिव लगता है तो इसका आंसर डेल्टा टी आ जाएगा। अब ये डी बाई डी टी, इसमें प्रॉपर्टीज लगती है फोरियर ट्रांसफॉर्म के। आई नो कि अभी तक हमने प्रॉपर्टीज लर्न नहीं किए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको इसी स्टेज पे याद रखना है, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी लेटर। तो डी बाई डी टी जब भी आता है तो मैं पहले ऐसे लिखता हूं, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। अभी हमने क्या लर्न किया, ये डी बाई डी टी यू ऑफ टी, इसका आंसर डेल्टा टी होता है, तो चाहो तो यहाँ पे पहले डेल्टा टी कर लो। सो आई विल जस्ट मॉडिफाई डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी, इसका आंसर डेल्टा टी होता है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा टी लिखता हूँ, दिस इज डेल्टा टी। डायरेक्टली मैंने डेरिवेटिव का आंसर लिखा। अब क्या लिखा है मैंने, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, ऐसे याद रखना है। डी बाई डी टी अगर टाइम डोमेन में आता है, मतलब मेक इट मोर सिंपल, डी बाई डी टी का फोरियर होता है J2 pi f। As I said, we are going to prove this property later। सिर्फ इसी स्टेज पे इतना याद रख लो, d by dt का फोरियर होता है J2 pi f। x of t सिग्नल है, इसका फोरियर डिनोट करते हैं कैपिटल X of f से। तो LHS साइड में I will be getting J2 pi f, मतलब d by dt के बदले में J2 pi f आ गया, x of t का फोरियर x of f आ गया, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, डेल्टा टी का फोरियर अभी अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में प्रूव किया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इज 1, सो 2 into 1 becomes 2। ये डेरिवेटिव है, देखो इसी स्टेज पे आप लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ 1 इज 0, तो इसी स्टेज पे लिख लो, बाद में फोरियर ले लो चाहो तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट टर्म, सो आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एज फार एज फोरियर इज कंसर्न। तो इससे x ऑफ f लिखेंगे 2 upon J2 pi f, ये 2 कैंसिल हो गया तो x ऑफ f आ गया 1 by J pi f। x ऑफ f मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, तो फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे Hg ऑफ t its Fourier transform is 1 by J pi f।
जस्ट इट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कभी भी हम लोग अगर 1/j लिखते इट इज सेम एज -j, तो आप ये आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, h1 of t its Fourier is -j/f. So dear students, I have completed the Fourier transform of major standard signals. So that's it for today's session. Thank you. Thanks a lot for watching this video.